اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق العظیم. It is my pleasure to share some knowledge of the subject non-economics. My name is Sartai. Today lecture is classification of economics. اور classification میں دو پوائنٹ ہم لوگ ڈسکس کریں گے, applied economics and theoretical economics. اور theoretical economics کے بھی آگے دو ٹائپس ہیں, جس کے اندر ہمارے پاس ویلفیئر اکنامکس ہے اور سیکنڈ آپ کا پازیٹیو اکنامکس ہے. اور آگے پازیٹیو اکنامکس بھی دو ٹائپس ہیں, مائکرو اکنامکس اینڈ مائکرو اکنامکس. انشاءاللہ اس لیکچر کے اندر ڈسکس کریں گے. جیسے کہ آپ پتہ ہے کہ ہم نے لیکچر سیریز اسٹارٹ کی ہوئی ہے بچوں, تو سب لیکچر آپ تک پہنچنے کے لیے آپ کو بیل آئیکن پہ کلک کرنا پڑے گا, لائک اینڈ کمنٹ ضرور کرنا پڑے گا, کیونکہ آنے والی ساری ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے. اگر میں لیکچر کی طرف چلتا ہوں, کلاسیفیکیشن آف اکنامکس, اس کو ہم ڈسکس کریں پہلے. کلاسیفیکیشن آف اکنامکس, اور اس کے بعد آگے اس کی دو جو ٹائپس ہیں کلاسیفیکیشن کی. فرسٹ ون از اپلائیڈ economics اور second one is theoretical economics. اور جیسے بتایا کہ theoretical economics کی آگے سے دو فردر ٹائپس ہیں, جس میں آپ کے پاس first one is, اگر یہاں لکھ دیں ویلفیئر آف اکنامکس, اور نیکسٹ ون از پازیٹیو اکنامکس. پھر جیسے میں بتایا آپ کو کہ پازیٹیو اکنامکس کی آگے سے دو فردر ٹائپس ہیں, جس میں فرسٹ ون از میکرو اکنامکس, سیکنڈ ون از مائکرو. اور میکرو, اور اس کو انشاءاللہ آگے سے اس کی جو میکرو اور مائکرو میں کیا کیا ہے, کہ مارشل نے میکرو کو ڈسکس کیا, روبن نے مائکرو کو ڈسکس کیا, تو اس طرح انشاءاللہ آگے دیکھیں گے میکرو اور مائکرو کے جو پوائنٹس ہیں, اس کو بھی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. اگر پہلے پوائنٹ ہم ڈسکس کروں, تھیوریٹیکل اکنامکس. تھیوریٹیکل اکنامکس یہ ہے نظریاتی معاشیات, یعنی کہ نظریاتی سے مراد یہ آپ کو تھیوریٹیکل سمجھ آ رہی ہے کہ ملکی جو معاملات ہیں اس کو زیر بحث لایا جاتا ہے, کہ اس کے اندر حالات, واقعات کہ جو چیزیں معاشرے میں ہو رہی ہوتی ہیں, اس کی معاشرتی نظام کو پیش نظر رکھ کر ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ کون سے معاملات ہو سکتے ہیں؟ فرسٹ ون از, اگر میں بات کروں طلب کی, قانون طلب اور قانون رصد ہے, اس کے بارے میں ڈسکشن کی جاتی ہے. قانون تقلیل افادہ مختتم, یعنی کہ ہم اگر انگلش میں اس کو بریف کریں تو لا آف ڈیمانڈ ہے, لا آف سپلائی ہے, یا پھر ہے لا آف ایکولی مارجنل یوٹیلٹی ہے. اس طرح کے جو دوسرے لا ہیں اس کے بارے میں وہ ڈسکشن کرتی ہے تھیوریٹیکل اکنامکس کے اندر. اور اس کے علاوہ جو ماہرین ہوتے ہیں اکنامکس والے, تو وہ اس کے علاوہ دوسرے جو مسائل ہوتے ہیں معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے لیے, اس کے لیے بھی وہ ایفرٹ کرتی ہے اپنے نتائج کے ذریعے اور اپنے یعنی کہ نالج کے ذریعے جو پرابلم ہوتے ہیں ان کو وہ ڈسکشن کرتی ہے. اچھا, مختلف شعبوں کے لوگوں کے طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کے پاس جو آجرز ہوتے ہیں ان کے طرز عمل کا مطالعہ کرتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کے صارف ہے, اس کا رویہ جو ہوتا ہے, کنزیومر جو کہتے ہیں, اس کا جو رویہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف معاشی, معاشرتی اور سماجی جو پرابلمز ہوتے ہیں, اداروں کے تمدنی جو اداروں کے پرابلم ہوتی ہے, ان کی کارکردگی کو بھی پیش نظر رکھ کر ان کے پرابلم کو بھی دور کیا جاتا ہے. یہ ڈسکشن کی جاتی ہے تھیوریٹیکل اکنامکس کے اندر. اگر تھیوریٹیکل کو اگر میں
अप्लाइड से मैं थ्योरेटिकल को क्लियर कर दूं, थ्योरेटिकल के अंदर वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। अगर मैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की तरफ चलूं तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, माशियात के अंदर, यानी कि पॉजिटिव से मुराद आपको पता है कि आगे से फर्दर उसकी टाइप्स हैं, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो, यानी कि जो आपके पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के जरिए हम माशरे के अंदर मसाइल, ठीक है, के असबाब, नताइज और इनकी बयान किए जाते हैं, और जो मामलात, जो मसाइल होते हैं माशरे के अंदर, उसको जिस तरह मसाइल होते हैं उसी तरह उसका हमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। और इस तरह इंसान की माशरती ज़िंदगी की बुनियादी हक़ाइक़ का गैर जानिबदाराना जो गैर जानिब मुशाहिदा और तज्ज़िया किया जाता है, इसको हम क्या कहा जाते हैं, इसको हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बाद हम वेलफेयर देखा जाए, वेलफेयर से मुराद इंसान की फलाह है, इंसान की फलाह के अंदर रोज़मर्रा के मामलात हैं, ठीक है, इनकी जो ख्वाहिशात हैं, रोटी कपड़ा मकान है, इसको हल करने के लिए हम वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स को यूज़ करते हैं कि इंसान की जो मादी लवाजमात है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं, उसको वो डिस्कशन करती है वेलफेयर ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर। अच्छा, अगर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को डिस्कस करें मैक्रो और माइक्रो का देखा जाए, सबसे अगर हम माइक्रो को देखें MICRO, यानी कि मैक्रो से मुराद होता है 1%, ठीक है, जैसे कि मैंने डेफिनेशन के अंदर बताया था आपको, जो डेफिनेशन थी वो ये माइक्रो के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ एक माशरे के रहने वाले मखसूस इकाइयों की वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनकी इकाइयों के लिए वो एफर्ट करता है। इसके अंदर इंसान की जो माइक्रो के अंदर वो मुख्तलिफ मस्जिद के जो लोग होते हैं उनकी मुख्तलिफ शोबों को अलग अलग छोटी छोटी इकाइयों में तकसीम करके उसकी उनको फिर जायजा लेता है। जैसे कि वो क्या करता है, सारिफ का रवैया होता है, कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसको डिस्कशन करता है, किसी शय का तलब होती है, डिमांड ऑफ गुड्स होती है, उसको डिस्कशन करता है, रसद का मुताला करता है, डिस्कस बाय द सप्लाई को देखता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। और उसके बाद शय की कीमत का तयन किया जाता है, किस चीज़ की कीमत का कितनी कीमत हो कि यूजर इसको आसानी से खरीद सके, उसकी डिमांड से वो बाहर ना हो। ये सारी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर उसकी फर्दर पॉइंट है, उस पॉइंट में प्राइस थ्योरी पहला जो है हम डिस्कस करेंगे माइक्रो के अंदर प्राइस थ्योरी। इसके आगे से मैं पॉइंट जो डिस्कस कर रहा हूं वो है प्राइस, PRIC, प्राइस थ्योरी। ये इसकी प्राइस थ्योरी है माइक्रो के अंदर। तो हम इसके अंदर हम प्राइस को मुख्तस करते हैं कि इस हिस्से के अंदर किस शय की तलब यानी कि डिमांड, रसद, सप्लाई के मुताला करने के बाद इसकी कीमत का तयन भी किया जाता है। यानी कि हम ये देखते हैं कोई चीज़ हमने ये मजबूत मार्कर है, इस मार्कर की हम प्राइस को कहते हैं, इसकी प्राइस और सप्लाई, हमने सप्लाई भी कर दिया, सप्लाई और ये भी सोच लिया सप्लाई भी करना है, इसको बना भी लिया। बनाने के बाद हम इसकी प्राइस के बारे में जो डिस्कस करते हैं कि आम लोगों तक ये कुव्वत खरीद आम लोगों तक ये पहुंच सके, तो उसको जो डिस्कशन करती है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स डिस्कस करती है। अच्छा, आगे है जी कंज्यूमर बिहेवियर। दूसरा पॉइंट जो है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर या बिहेवियर यानी कि इसके अंदर सारिफ का रवैये का अंदाज कि जो सारिफ है, जो कंज्यूमर है, कंज्यूम करने वाला, इस्तेमाल करने वाला, उसका क्या इसके अंदर रवैया हो सकता है। इस शय के सारिफ की तर्ज अमल जो है तर्ज अमल पर अमल करके नजर रखी जाती है, यानी कि सारिफ पर नजर रखी जाती है कि वो बाजार जा, यानी कि अगर वो बाजार जाकर अपनी वो चीज़ों को देखता है कि मेरे पास जितने पैसे हैं उसके अंदर अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएं, यानी कि जो चीज़ें उसने खरीदनी है, जो चीज़ें उसने परचेज करनी है, उसी के अंदर वो सारी चीज़ें उसके पास आ जाए, तो वो बस अपने
अखराजात को देखेगा और अपनी जो इनकम है, मखसूस इनकम है, मखसूस जो रिसोर्सेज है उसके अंदर रह कर वो डिस्कस करेगा, अपने थिंकिंग करेगा कि कौन सी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा वो परचेज करे और अपनी कम इनकम के ज़रिए वो जो काम ये करेगा उसको जो डिस्कस करता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कशन की जाती है। अगर तीसरा देखा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, दूसरा जो थ्योरी है वो कहता है डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म की डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है कि क्या फर्म के अंदर तकसीम दौलत के दौलत को तकसीम कैसे किया जाता है कि जो आपके पास कौमी आमदनी की तकसीम का जो नज़रिया है मुख्तदम पैदावार है उसका जो तनकीदी जायज़ा लिया जाता है वो आप किस में लेते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जो आमरीने पैदाइश है, जो चीज़ों की पैदाइश है उसका जो मुआवजे का जो ताइन है वो भी हम किस में डिस्कस करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक्स के अंदर, यानी कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फर्म यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर ज़मीन की जो लागत है उसको डिस्कस किया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, और इसके अलावा जो मेहनत की उजरत है, जो लेबर की जो मुआवजा दिया जाता है वो भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा अजर का जो मुआवजा होता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। जो कंज्यूमर ऑफ फर्म है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अगर आगे पॉइंट्स यहाँ तक थे माइक्रो इकोनॉमिक्स के। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए, मैक्रो से मुराद होल एग्रीगेट, सबके बारे में माशरे के अंदर रहने वाले, वो मुल्की सतह पर हो वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, उसके बारे में जो डिस्कशन की जाती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, और उसके अंदर अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स को देखा जाए, ब्रीफ किया जाए, माशरे के अंदर जो मसाइल हैं वो बैनुल अक़वामी सतह पर हो, ठीक है, और इसके अलावा जो कौमी आमदनी है उसको डिस्कस किया जाता है, रोजगार है, कौमी आमदनी है उसको हम डिस्कशन करते हैं। उसके अलावा मजमूई जो रसद है, मजमूई जो तलब है, यानी पूरी मुल्क की जो सप्लाई है, पूरे मुल्क की जो डिमांड है, मजमूई सप्लाई है, मजमूई जो रसद है, तलब है, उसको डिस्कशन की जाती है। कौमी सतह पर जो आमदनी है उसको डिस्कशन किया जाता है, और सर्फ और सरमायाकारी जो है या मालियात है उसको डिस्कशन की जाती है। बैनुल अक़वामी तिजारत जो होती है उसको हम जो डिस्कशन करती हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कशन करते हैं। अगर इसका पहला पॉइंट अगर देखा जाए नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर हम इसका पहला पॉइंट देखें कि नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, अगर नीचे बदल के यहाँ लिखो, अगर इसको डिस्कस किया जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम को और साथ में एम्प्लॉयमेंट को, नेशनल इनकम, कौमी आमदनी और रोजगार के जो तरीके हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका जो ताल्लुक होता है वो होल नेशन से होता है, होल एग्रीगेट से होता है कि मुल्क के अंदर वाले जो लोग हैं, एजुकेटेड हैं, उनकी डिस्कशन की जाती है। जो बैचलर है, जो मास्टर किए होते हैं, जो BM.Phil या PhD होते हैं, उनके बारे में जो डिस्कशन किया, उनकी जॉब के बारे में, या माशरे के अंदर जो गरीब लोग हैं उनके बारे में डिस्कशन की जाती है, जो गरीब तबका उसको उठाने के लिए डिस्कशन की जाती है, जो बेरोजगार हैं उनकी जो एजुकेशन के मामले में जो जितनी एजुकेशन के मुकाबले में उसको जॉब प्रोवाइड की, यानी जो सारी डिस्कशन होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स अपने अंदर वो डिस्कस करती है। इसके अंदर कौमी आमदनी का मफहूम मापने का तरीका भी किया जाता है, मुताले की अहमियत भी बयान की जाती है, आमदनी की सरफ बचत, यानी आमदनी जो है उस पर बचत कैसे की जा सकती है और सरमायाकारी कैसे की जाती है, ये सारा रिश्ता जो होता है वो कौमी आमदनी के अंदर डिस्कस किया जाता है। कौमी आमदनी का तवाज़ुन होती है, सतह मतलब का जायजा लिया जाता है, यानी कि सारी चीज़ होती है, रोजगार के जो मौके फराम किए जाते हैं माशरे के अंदर, वो सारी जो डिस्कशन होती है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करती है नेशनल इनकम ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। अच्छा, आगे चलते हैं। दूसरा है बिजनेस फ्लक्चुएशन।
business fluctuation and fluctuation. Fluctuation, ठीक है, EIUN, fluctuation, business fluctuation यानी कि उतार चढ़ाव। बिजनेस के अंदर अप एंड डाउन, क्राइसिस तो आते रहते हैं। कोई बिजनेस है, बिजनेस का जो डेफिनेशन है वो यही है, प्रॉफिट एंड लॉस। इसके अलावा बिजनेस नहीं चल सकता। तो अगर हम देखा जाए इसको मैक्रो के हवाले से देखा जाए तो इसके अंदर मुख्तलिफ जाती चक्कर आते हैं, वो मुख्तलिफ अदवार आते हैं। कभी जो बिजनेस है वो पीक पर होता है, कभी बूम पर होने के बाद वो कभी अप डाउन नीचे की तरफ वो उसका ग्राफ आ जाता है। तो ये सारे जो मामलात होते हैं, ऐसी खुसूसियात होती हैं, असबाब होते हैं और नज़रियात होते हैं, इसको बयान किया जाता है। और इसके साथ साथ और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको डिस्कस करने के बाद उसका सोल्यूशन भी जो प्रोवाइड किया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, आगे देखा जाए मनी एंड बैंकिंग, जो थर्ड पॉइंट है वो है मनी एंड बैंकिंग, कि आपने इसको ज़र और बैंकारी में भी इसको यूज किया है। तो किस तरह हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए पैसों की जो प्रॉब्लम्स है उसको देख सकते हैं, जो प्रॉब्लम जो ज़र है, जो हमारे पास इनकम है, जो अमाउंट है, उसको हम किस तरह माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। और इसके साथ बैंकारी जो है उसको हम किस तरह, बैंकिंग को हम किस तरह मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कशन करते हैं। तो इसमें ज़र का मफहूम होता है कि दौलत को किस पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं, इसके फराइज के हैं, आने वाले वक्तों के अंदर इसको कैसे डिस्कस किया जाता है और इसकी कदर में तब्दीली कैसे आती है, इसको डिस्कस किया जाता है, इसके असरात का जायजा लिया जाता है। अगर हम बैंकिंग को देखें तो बैंकिंग के फ़राइज़ होती है और कारकर्दगी होती है, उस पर नज़र रखी जाती है। इसके साथ साथ मरकजी बैंक के ज़र की रसद को कंट्रोल किया जाता है। ये सारी जो पॉलिसी बनाई जाती है मुल्क के अंदर कि किस तरह कितना हमने इनकम को किस जगह पे लगाना है, बैंक के अंदर क्या हमने एंट्रीज पेश करनी है, इनके सारे मामला हम जो डिस्कशन करते हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डिस्कशन करते हैं। आगे देखे जाए फाइनेंस, मालियात। फाइनेंस ये मालियात के जो हुकूमत के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, जो खराजात होते हैं, उसको डिस्कशन जो की जाती है वो हम फाइनेंस के अंदर डिस्कशन की जाती है। कितनी चीज़ जो हुकूमती खजाने से निकाली है उसको कितना यूज़ करना है, उसका कितना बेनिफिट आने वाले वक्तों में होगा, ये सारी डिस्कशन हम फाइनेंशियल जो मालियात है, फाइनेंस है, इसमें डिस्कस करते हैं। शोबों की जो हुकूमत की आमदनी है, खर्च है और उसकी पॉलिसी का जो मकासद है वो सारे इसके अंदर डिस्कशन किए जाते हैं। उसके अलावा बैनुल अक़वामी तिजारत है, इंटरनेशनल ट्रेड, अगर हम वो डिस्कशन करें, इंटरनेशनल ट्रेड अगर इसको डिस्कस करें, बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारत है वो बहुत अच्छी अहमियत क्या मिला कि हमारे आपस में जो दूसरे मुल्क है उनसे रिलेशन क्या, जो फॉरेन कंट्री है, जो पाकिस्तान है, साथ जो हमसाए मुल्क हैं उनसे रिलेशन अच्छा होगा तो हमारा बैनुल अक़वामी सतह पर तिजारत अच्छी होगी। ठीक है, यानी कि अपनी चीज़ों को हम इंपोर्ट करेंगे, उनसे एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा आपस में ताल्लुक अच्छा होगा, हमारा लेन देन अच्छा होगा। तो उनके साथ जाहिर बात है हमारा लेन देन जब अच्छा होगा तो हमारे ट्रेड को वुसअत मिलेगी। जो ये सारी चीज़ों का देखा जाता है कि मुल्क की जो ख्वाहिशात है, जब मुल्क के अंदर जो डिमांड है उसको पेश नज़र रखकर उस चीज़ों की जब हम प्रोडक्ट करते हैं, उसको बनाते हैं, बनाने के बाद जो चीज़ें बच जाती हैं मुल्क में से बाहर फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो चीज़ मुल्क में ज़रूरत होती है उन चीज़ों के हम इंपोर्ट करते हैं, मुल्क से बाहर मंगवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल एक अच्छी होनी चाहिए, जो पॉलिसी होती है, जो ज़रा मुबादला होता है वो एक अच्छी तरह हम तौल मुनाफे को एक अच्छी तरह से मुख्तस करते हैं। वो सारी चीज़ें जो डिस्कस की जाती हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कशन की जाती है। अगर लास्ट पॉइंट जो हमारा रह गया था ये था हमारा सारा हम डिस्कस थ्योरेटिकल इकोनॉमिक्स, वेलफेयर, पॉजिटिव, उसके बाद उसके दो
پوائنٹس ہیں میکرو اکنامکس مائکرو اکنامکس اس کے جو پوائنٹ ہیں وہ انشاءاللہ ہم نے ڈسکس کیا آپ کے سامنے. اور لاسٹ جو پوائنٹ رہ گیا تھا اپلائیڈ اکنامکس. اپلائیڈ اکنامکس اطلاقی جو معاشیات ہیں اس کے اندر اگر ہم ڈسکس کریں کسی ملک کی مقصود حالات سے اطلاق کرنے سے اس ملک کی معاشرتی مسائل کو حل کرنے کے لیے جو عملی اقدامات اٹھائے جاتے ہیں اس کو ہم اپلائیڈ اکنامکس کہتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم مثال کے طور پر ہم اسے ڈسکس کریں کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ ہمارے ملک کے اندر کھادوں کی پرابلم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم کیا کر سکتے ہیں, کوئی ادارہ کوئی انسٹرومنٹ کوئی کمیٹی ہم تشکیل دے کر کہ یہاں پر ہمیں بیج صحیح اچھے بیج نہیں ملتے, ان کے لیے ہم ادارے قائم کیا جائیں جو کاشتکار حضرات ہیں جو فارمر ہیں ان کے لیے ہم آسانی پیش کریں, کیونکہ ہمارے جو کاشتکار ہوتے ہیں جو فارمر ہیں وہ ان ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کو اویئرنیس نہیں دی جاتی ہے. تو اسی طرح پر جو یہ اپلائیڈ اکنامکس ہے یہ ان کو جو انفارمیشن پرووائڈ کرتی ہے, ان کو بتاتی ہے کہ آپ اس طرح کرو گے اپنی لینڈ کے ساتھ, زمین کے ساتھ, اور اتنے یہ چیزیں آپ یوز کرو گے تو آپ کی فصل کو زیادہ بینیفٹ ہوگا, آپ کی زمین کے بھی بینیفٹ ہوگا. تو یہ ساری اقدامات اپلائیڈ اکنامکس میں ڈسکس کرتی ہے. اور اس کے علاوہ سیم اور تھوٹ کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہمارے کاشتکار حضرات کو جو فارمر بھائی ہیں ان کو مشکلات کا جو ہوتا ہے درپیش ہوتا ہے مسئلہ. تو اس کے لیے کیا ہمیں کرنا چاہیے, ایک محکمہ زراعت کا قائم کرنا چاہیے جو کاشتکاروں کو کیڑوں مار سے بچاؤ کے لیے تدابیر اور ضروری احتیاط بھی اس کو بتائی جائے کہ یہ تدبیرات اختیار کر کے آپ اپنی پرابلم سے اپنی جو مشکلات سے آپ بچ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آبپاشی کی سہولت جو ہے وہ ناکافی ہے, یعنی کہ اس کے اندر ہم یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کسی شعبے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اس کی کارکردگی کے بڑھانے کے لیے مختلف جو اقدامات اٹھائے جائیں, یعنی کہ جو پرابلم ہے کاشتکار کے جو فارمرز کے ان کو اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر کے ان کے مسائل کو دور کیا جائے. یہ سارے ڈسکشن اپلائیڈ اکنامکس میں ڈسکشن کی جاتی تھی. آج ہمارا یہ لیکچر تھا جس اسٹوڈنٹ آپ کو ضرور سمجھ آئی ہوگی, یہ ہماری ایفرٹ تھی, ہماری کاوش تھی, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. تو امید ہے کہ میرا جو لیکچر ہے آپ کو آج سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ لاسٹ لیکچر جو ہوگا وہ آپ کے سامنے ہوگا, میکرو اور مائکرو کے ڈیفرنشیٹ وہ ڈسکس کریں گے. اور بس یہ اس ٹاپک کا اس چیپٹر کا ہمارا لیکچر ہوگا. پھر انشاءاللہ ہمارا سیکنڈ چیپٹر شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. زندگی نے وفا کی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر. اللہ حافظ.